Hello guys, welcome back to the eStudent platform. In the second section, we have just finished it still 40 questions, right? Yeah, we have finished it 40 questions of a due paper, right? Due paper 2018. So today we can just continue with that section, continue it. Okay, myself, Srujan BR. Okay, welcome to student platform once again. Okay, let's today. Now we can start with the, as we have done earlier, we can go with the 41st question, which we have completed till the 40th. And today, now we can go with the 41st question. So now we can just start reading it. Yeah, look here. 41st question says that rank the following alkenes in order of increasing maximum wavelength. Okay, this second options has been not printed out, but I'll just write down. Okay, just write down it. Okay, and add a third option also. Okay, fine. Yeah, this. Okay, look here. In 41st, they're asking that rank the following alkenes on order of increasing maximum wavelength. Okay, students, just look for doing with the increasing maximum wavelength. That first you have to know how will you find this wavelength here. Yeah, I know it is like it depends on a Woodruff-Fisher's rule in a UV visible spectroscopy. It related to that. So here, for finding a maximum wavelength, we have to first know what will be the energy gap, means energy difference between the tertiary alkenes, like it is triene. There is a first it's a triene, second also diene, in third also a diene, but there is a conjugation in a third diene and there is a conjugation in a first triene. Okay, so see here it is a triene, right? Triene. Here it is also diene. Here is a conjugation. Okay, there is a conjugation here, and here also there is conjugation. Conjugated diene. Okay, fine. So here the energy gap matters here. Okay, if the energy gap between them decreases, they have a maximum wavelength. If the energy gap between them increases, then they have a minimum wavelength. Okay, now just look here. At a normally, you can say, I just give you one simple diagram where that you can simply notify it. How do you understand this? Okay, for a normal alkene, sorry, it can be alkene. Next with the butene, okay, sorry, dihenes. Okay, see, is a triene. Okay, this is ene, only it is ene. Next it is dihene. Next one is a triene. Okay, what is energy level diagram for this? Energy, right? Is energy. Okay, for this, what will be the HOMO-LUMO gap? See here, for this there is a one HOMO and a one HOMO and one LUMO. It is HOMO and it is LUMO. Okay, so electrons are filled in this way because there is alkene. So alkene. So it means that there's a two electrons, right? Two pi electrons. So it is filled here. Next, so it is a LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. HOMO, highest occupied molecular orbital. Fine. Now in diene we have a three orbitals. 1, 2, 3, 4. Okay, these are all having a different energy. See, like this is as if there is a two dienes, electrons are filled here 1,
2, 3, 4. 4 electrons, and these are empty. And this will be our LUMO, and this will be our HOMO. This will be our HOMO. Okay, fine. Now, in this, now there are 6 orbitals here. 6 molecular orbitals here for this. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So just fill electrons here. Total of 6 electrons, right? Yeah, 1, 2, 3, 4. So now this will be our LUMO and this will be our HOMO. Just compare here. Just compare the energy difference, guys. Students, look here. Energy difference between the HOMO LUMO was this much delta energy E gap. What about here? Here the energy is completely decreasing, right? Gap. And yes, it's still more. It's too less here, right? Delta E gap, delta energy gap. Okay. So it is decreasing. Energy gap is going on decreasing, like energy gap is decreasing. Energy gap is decreasing. It means that hence lambda maximum, that is wavelength, is increasing. We know that, right? Energy is inversely proportional to wavelength, right? So as that way, if energy is decreasing, so lambda max will be increasing, right? So this what tells you that this is the main, like due to the energy gap between the HOMO and the LUMO, you can tell that as a conjugation. Normally, this is simple, the theory behind that, but the simple way is that if the conjugation is increasing, it means that there is more lambda max. If the conjugation increases, lambda max is greater. If conjugation increases, lambda max also increases. Okay, look here. Now the conjugation is here, present here. So it will be first order will be first, then which is the second order. Second order is this, third one will be second, and next there is no conjugation here. So they're asking, this is a decreasing energy, but increasing energy will be, look here, it will be the first option D. Okay, fine guys, I think you understood. This is the easy concept, and I have explained you even the theory also. What is the theory behind this? Okay, look here, I have explained you the what is the theory behind this. Okay, maybe you can see the theory also, what I have explained here. Okay, fine. Okay, guys, now let me go with the 42nd question. The correct relationship between the following compounds. 42nd question. Okay, look here. In 42nd question, they're asking the correct relationship between the following compounds. Okay, this question is not visible, so we can just go with this page. Okay, look here. 42nd question, right? Yeah, it was 42nd question. Think now that the question is visible right now. Okay, fine. See here, the 42nd question, it's visible. Okay, they're asking what is the correct relationship between the following compounds. Okay, can you tell me first, like what is enantiomers, homomers, constitutional isomers, diastereomers? Yeah, it means that actually for this is allene system, right? Allene system, allenes. This allene systems, right? Okay. Allenes, right? So for this, we have to go with the different
like naming R and S nomenclature. So for enantiomers, it should be like a same, it should be different. It means that if the one given compound, like one given compound with R, then it should be the next one should be the S. Means it should be a different configuration. Means if R configuration should be one and one more should be S configuration, it will be the enantiomers. For homers, if one is R, the next one should be also R. Or if one is yes, the other one should be also a yes. Okay, fine. Now, for constitutional isomers means for isomers, it should be like a same molecular formula, right? Like molecular formula should be same. Molecular formula, but structurally different. Molecular formula same and structurally different. Yeah, obviously it is same. Structurally is different. Constitutional isomer, structure different. Okay. Fine. Now, but the structure is not different. Molecular formula is same, but structure is not different. But it's a configuration is different. It is constitutional isomer. Okay. Now, for diastereomers, it means that for diastereomers, we should go with a 2-point. Like if a one is showing R and then in the same allenes, if there is a 2 configuration of a carbon, so if a one configuration R and the same configuration is R, if the for first it is like I will say that it's a for 2R. Okay, sorry, don't want 2R. Like normally for a one carbon, if the configuration is R, if the next compound having the same configuration, it's fine. It is called a homers. And if the second carbon of the first compound is yes, and the second configuration of the second compound, if it is R, then we will call it as a diastereomers. Okay, or also it can be in this way also. It can be like it can be like R, and the next one will be yes. Next one will be R, and if it is yes, R, even it is also a diastereomer. Okay, it means that it should not be same. At least there should be a difference in a one configuration. If the one configuration is same, and then sorry, if the one configuration is same, the next configuration should be a different. Okay, but for enantiomers, both the configuration should be different. For homers, both the configuration should be same. Okay, it tells about the it is homer or a diastereomer. For now, for this, we can go with the naming. Okay, first see, we can go with this carbon. Not for this, we can go with this carbon. Okay, fine, we can go with this carbon. I'll show you it once. I'll just show it in different. I write here carbon, hydrogen, OH group, and it is a methyl group, carbon, hydrogen group, and it is Cl. Okay, fine. So for this, you have to find the configuration. Okay. The question is the same, but we have to find for this and also for this. Okay. Fine. For this, because you can't find for this. Do you know why? Because there is a double bond here. But you can tell that carbon having a 2 double, but it is an allene system. There's a different nomenclature for the allene system where you can find the R and S nomenclature. First, I'll just show for this carbon. Okay. Look here. They have given the 2 plane system and the 1 above system, and the 1 they have not given. We should make it as a hydrogen, because like they have not mentioned the hydrogen, and they have mentioned the 2 planes, 2 in the planes, that is methyl and the carbon are in the planes, and the 1 is left out is below the plane, that is will be hydrogen. Okay, fine. Now start labeling with this. So first we go with the oxygen, second with this part, and third with this, and the fourth with this. So it is going in a this way, right? 1, 2, 3. So it is which? It is R nomenclature, right? R. It means that going in a clockwise direction, right? It is going in a clockwise direction. So it is R. So now come for this, for allene system. For allene system,
there is one normal rule, right? So while looking the allene system, just show you the allene system here. Hydrogen, Cl, and your hydrogen, carbon, Me, and OH. Okay, while looking it, your eye should start with the this point, like where there is a above and below the plane rays. Okay, so look from this side. Okay, view from this side, and this line that you are viewing this should be the bolded line here. Okay, just make it. It is a bolded line. Okay, bolded line will be always the first priority while labeling it. Next, while labeling a bolded line, we have to check from this side. From this side, look, chlorine is towards the right, towards the right. Chlorine is towards the right, and hydrogen is towards the left. Okay, so label it here. So label here, right side it is a chlorine, and left side it is a hydrogen. Okay, this part is completed. Now there is a this part with this carbon part. So for this, just draw single line. Consider this as the upper part, and consider this part as a lower part. Okay, so upper part is with only simple hydrogen, and the lower part is with the carbon attached with the one methyl group and the OH group. Okay, so now just start numbering this. As I told, the bold line should be a first priority. Okay, first priority. Okay, though there is a different, though there is a higher number here, we should not go with the year. We should go with the bold line itself. Okay, this will be the bold line. Okay, bold line. So label number it. First will be this atomic number is more for this, so we should go with the first labeling, and second should be given to this itself. Okay, lower. Then we should go with the third part and go with the fourth part. So check here. So it is going with the which part? Anti-clockwise direction, right? Anti-clockwise direction. So it means that what? It should be a S numeric S configuration. Okay, it is a S configuration. Fine guys, हम अभी पता चल गया हमको A वाला part, second carbon will be this, like middle carbon will be देखो A वाला कार्बन है ना, A वाला कार्बन, ये तो yes है, और A वाला है ना, A वाला part, this part will be the R. Okay, इसे याद रखना, ये पहला वाला स्ट्रक्चर का था. ठीक है, अभी हम चलेंगे दूसरा वाला स्ट्रक्चर पे. ठीक है, हम चलेंगे दूसरा वाला स्ट्रक्चर पे, इस पे. ठीक है, इस पे चलेंगे हम. दूसरा वाला सेकंड स्ट्रक्चर है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर था. ठीक है, चल ठीक है, हम चलेंगे सेकंड स्ट्रक्चर पे. पहले सेकंड स्ट्रक्चर को मैं लिख लिखता हूं एक बार. एक कार्बन है, कार्बन, और इधर क्लोरीन है, हाइड्रोजन पार्ट है बिलो द प्लेन, एंड इन द प्लेन हियर इसमें हाइड्रोजन है, और इसमें इन द प्लेन को OH करना है. इसमें बिलो द प्लेन मेंशन नहीं किया है. ठीक है, मतलब बिलो द प्लेन मेंशन नहीं किया है, इसको हम खुद लिखना पड़ता है. हम खुद कभी हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया, हमको देखना है हाइड्रोजन कौन सा प्लेन पे है. इस क्वेश्चन पे they have given a below and above, then we have to consider hydrogen as in the plane. If in the question they have given both the bonds, like in the plane bonds, and they have missed any bonds like below or above, we should give missing bond to the hydrogen atom. Okay, now there is a missing of a above the plane, so I am giving the above the plane for a hydrogen. Okay, this is the compound. So for this, now start with the labeling. Cool. ठीक है,
हम शुरू कर लेंगे लेबलिंग के साथ। इसको लेबल सेकेंड वाला है, ठीक है, हम इसको लेबल कर लेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, हम लेबल कर लेंगे इसको। नॉर्मली मैंने बोला इसको लेबलिंग कर लेंगे पहले, ठीक है, इसको लेबलिंग कर लेंगे। अभी देखो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। हम पहले ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देना है, उसके बाद ए वाला कार्बन को, नेक्स्ट तीसरा ए वाला को, और फोर्थ वन दिस पार्ट। सो नाउ लुक हियर, नाउ go with this way, like 1 2 3. Okay, it means that it is going in a anti-clockwise, right? This is anti-clockwise, right? Yeah, anti-clockwise. But for as a condition that if during a nomenclature, you should see if the hydrogen is in above the plane. Okay, if hydrogen is in above the plane, yeah, it is hydrogen is above the plane, change the configuration. Okay, change the configuration. It means that we should change if above the plane, if above the plane, if hydrogen is present, if H is present, change the configuration. Okay, change the configuration. It means that if it comes with the R configuration, then change it to S configuration. Okay, next, if it is S configuration, change it to the R configuration. Okay, if it is only above the plane, only above the plane. If it is below the plane, then just keep as it is. Keep as it is. Okay, keep as it is. Fine. Now here it is above the plane, right? So change the configuration. It will be a R configuration. Okay. Now we got it is a R configuration. R configuration. Now, now for this alene system, go with alene system. As I told you, for alene system, you have to look from this side. Okay, like if you look from which side you will look, right? Where is the first carbon you see? That should be a bold line. So I always follow this rule that I will look where there is a above and below, like wedge and desk plane. Okay, so I'll look always in that side. So it will be very good. So I'll take this as a bold line. Okay. So I'll take this as a bold line here. Okay, I'll take this as a bold line. And during bold line, we have to consider it here, right? Okay, what you have to consider? Look it, you are looking from this side. So from this side, you can see H is on the left side and this is on the right side. Okay, look towards this. Like if the compound is in this way, I think you all can see. If the compound is in this way, you have to look in this way. Like you are standing here and your compound is in this way. You have to look here from this side. Okay, you are here and the compound is here, so you have to look towards this. Okay, so left side you can keep hydrogen left side and chlorine at this side. Okay, then this is upright, hydrogen is up and this is down. Okay, this is down and this is up. So up is hydrogen and down is a carbon with the OH group and one methyl group. Fine. So label it. First should be preference should be given to this, and second should be given to this, and third should be like first preference should be the bold line, right? Bold line. First preference. Okay, bold line first preference. So go with this 1, 2, 3, and it is with the same anti-clockwise direction.
एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज अ एस कॉन्फ़िगरेशन। या गाइस, हमको अभी पता चल गया, इसका भी एस है, इसका भी एस है, आर आर एस एस। देख, अभी इसका भी आर आ चुका था, इसका भी आर आ गया, इसका भी एस है, इसका भी एस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही, दोनों का मतलब पहला वाला फर्स्ट फर्स्ट का और दूसरा का आर है, इसमें भी हार है, और इसमें एस है, इसमें भी एस है। इसका मतलब कि दोनों आर आर सेम है और एस एस सेम है, सॉरी एस एस सेम एंड ए भी सेम है। सो मैंने बोला था सेम, हार आर दोनों सेम है एंड एस एस दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये दोनों ओमोमर्स, बस ओमर्स। इतना सिंपल है, आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट पता हो जाता है ना, आपको नॉर्मली सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप नोट कर सकते हैं इसको, नॉर्मली आप इस टाइम पे पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं पूरा, और ये भी नोट कर सकते हैं क्या क्या लिखा है, क्या क्या है। ओनली अबो द प्लेन, देखिए तो कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बोल्ड लाइन भी मेंशन किया है इसमें, बोल्ड लाइन है। एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज शुड बी गिवन टू द बोल्ड लाइन इटसेल्फ, वेयर यू सी थ्रू योर आईज। ओके फाइन। ओके गाइस, हमने 42nd क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अभी हम चलेंगे बैक टू द पेपर। 42nd क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने, हमको आंसर मिल गया था ओमोमर्स। ठीक है, हमको आंसर मिल गया था एक ओमोमर्स है। ठीक है, अभी हम चलेंगे 43rd क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 43rd क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार। 43rd क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 43rd पूछ रहा है कि नॉर्मली thallium plus compound are poisonous because, क्यों poisonous क्यों है भाई? एक्चुअली बायोइनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है ना पॉइजनस क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कट ऑफ ब्रीथिंग कैपेबिलिटी होता है। ब्रीथिंग कैपेबिलिटी को कट करने का चांसेस और पॉइजनस है थैलियम प्लस है, टीएल प्लस के पास इतना चांसेस है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कट ऑफ ब्रीथिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मली कट ऑफ ब्रीथिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 44th के ऊपर। आपको पता है 44th क्वेश्चन क्या है? क्या नॉर्मली एक मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है? एक्चुअली बेंजाइन मैकेनिज्म है। ठीक है, बेंजाइन का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने वाला हर एक पॉइंट है। ठीक है, इसमें बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। बेंजाइन आपको पता होगा, बेंजाइन ये तो इंटरमीडिएट है ना, बेंजाइन इंटरमीडिएट है, कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, लाइक ट्रिपल बॉन्ड जैसे, लेकिन इट्स नॉट ट्रिपल बॉन्ड, राइट? लाइक ऐसे लगता है ना, हम ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करता है इसको। ठीक है, हम बेंजाइन मैकेनिज्म है, हम चलेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के ऊपर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे इधर, क्या होता है इसमें। ठीक है, देखो नॉर्मली ओएमई, ठीक है, और इसमें लिखा है सीएल। ठीक है, सीएल लिखा है। ठीक है भाई, हम चलेंगे इधर। ठीक है, Na NH2, ए माइनस है, ए प्लस है, ए आपको कोई पता है। ठीक है, अब देख नॉर्मली ए वाला हाइड्रोजन है ना, ए वाला हाइड्रोजन हे अटैक करता है, इसको रिमूव कर सकता है ए वाला पार्ट। मतलब कि NaNH2 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हमको पता है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ए इसको अटैक कर लेता है, अटैक करके रिमूव करता है, क्योंकि NH2 माइनस है, ये बेस के जैसे काम करता है, बेस के जैसे काम करता है। देख अब हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब इसको निकाल लेता है, निकालने के बाद क्या हो जाता है भाई? निकालने के बाद
ए वाला पार्ट मतलब कि H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है ना इधर, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। Here the base is abstracting a proton. It means that it is abstracting a proton and an electron is released to this and the Cl minus is eliminated. So there forms a benzene. ठीक है, हमको बेंजाइन मिल गया। अब क्या है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये क्या काम है, उसके बाद हमको काम होता है कि NH2 का, NH2 माइनस है हमारे पास, ठीक है। वो अभी ऐसे एलिमेंट में नहीं बैठता है, वो कोई भी हो कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज है ना, वो ऐसे साइलेंट में नहीं बैठता है, ठीक है। क्या करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और चांसेस है इसके ऊपर करने का, लेकिन हम चलेंगे पहला वाला रूट से, वहां पे क्या क्या होता है देख लेंगे इधर, ठीक है। पहले वाला रूट देख लेंगे, ए वाला फर्स्ट पार्ट है और दूसरा ए वाला सेकेंड पार्ट है, ठीक है। हम पहले पार्ट पे देख लेंगे क्या होता है। एक्चुअली पहले वाला पार्ट पे अटैक करेगा NH2 इधर एंड द कार्ब एनियन फॉर्म होता है ना, कार्ब एनियन है ना, कार्ब एनियन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। कार्बन फॉर्म करके इधर OMe है, देख इधर कार्बन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब चलेंगे दूसरा रूट पे, क्या क्या होता है, दूसरा रूट भी कार्बन फॉर्म करता है भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, कार्बन तो फॉर्म करना जरूरी है। NH2 इधर अटैक करेगा और OMe करेगा, लेकिन अब आता है स्टेबिलिटी के बाद, बात क्या आता है, स्टेबिलिटी। लुक, which one will be more stable? Carbanion is highly unstable in the presence of an electron donating group. OMe is a electron donating group. So if electron donating group is near to the carbanion, it means it is less stable. It means it is a less stable and this is a stable product and it will be the major. समझ रहे हो? It will be major and it will be minor. Okay, fine. हमको ये पार्ट मिल गया। अब हमको पता है क्या होता है, अब उसके बाद हमको पता है नॉर्मली NH2 के पास और एक है, इसको नेगेटिव का अटैक करेगा, उसके बाद दोबारा NH2 आ जाएगा, हमको प्रोडक्ट मिलता है, नॉर्मली इसके हाइड्रोजन आता है, NH2 है, उसके बाद इधर क्या होगा इसको, ठीक है। इसमें आता है OMe पार्ट, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका तो वही है, इसका तो वही आता है ना, इसका भी दूसरा अलग तो नहीं आता है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग तो ऐसे टाइप आता है, लेकिन ये तो माइनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट तो है, मेजर है, ये तो माइनर है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे, ये तो मेजर प्रोडक्ट है, ये तो माइनर प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि नॉर्मली ये वाला मैकेनिज्म से होता है कि कार्ब एनायन इज highly unstable in the presence of an electron donating group. It is stable in the presence of electron withdrawing group. Carb anion is stable in presence of electron withdrawing group and unstable or less stable. We can tell that less stable. It will be the appropriate word, okay? Less stable in presence of electron donating. Fine, yeah. So we got this point. So keep in mind carbon. So every factor of in organic chemistry question, it will be involved. Okay here. Fine. आपको मिल गया आंसर इसका, ठीक है। क्या है, बस इतना ही आंसर, देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। यही आंसर है,
आपको देख सकता है क्या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है फर्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट बेंजाइन फॉर्म हो गया, उसके बाद स्टेबिलिटी के बात कर रहा है, उसके बाद माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब देख लेंगे हम कौन सा हमारा आंसर है। अब ने देखा है कार्बन शुड बी फॉर्म्ड हियर, कार्बन इधर फॉर्म होता है ना, सो ऑप्शन है होता है मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन है क्या? मैं देखता हूँ एक बार। ऑप्शन ए मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है बस। चल ठीक है, हम चलेंगे 40 क्वेश्चन के ऊपर। फॉलोइंग रिएक्शन गोस थ्रू, ठीक है वो कंप्लीट कर दिया ना हमने 43rd को, 44th को, हाँ कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे 45th के ऊपर। फॉलोइंग रिएक्शन गोस थ्रू, ओके। एक्चुअली देख ये आपको देख के पता चल जाता है कौन सा रिएक्शन है। रियाडिकल मैकेनिज्म होना चाहिए ना, उसको हम बोलता है उनसीडिकर। क्या है? उनसीडिकर है। देख ये उनसीडिकर रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन बोल सकते हैं उनसीडिकर। देखो ये तो उनसीडिकर है, ठीक है। सी रिएक्शन, ठीक है, ये उनसीडिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट काम आता है, ठीक है बच्चों, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट काम आता है। चल ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। हम इसको मैकेनिज्म पढ़ के हमको पता चल जाता है और क्या क्या चल रहा है इसमें, ठीक है फाइन। देखो हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे इधर, ठीक है। उनसीडिकर का मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। पहला बात क्या है, नॉर्मली रेडिकल मतलब रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब उसमें रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, नॉर्मली मैं जनरल रिएक्शन के बात कर लेता हूं, ठीक है। उनसीडिकर का जनरल रिएक्शन के बात करता हूं मैं। सॉरी, जनरल रिएक्शन, ठीक है, उनसीडिकर का जनरल रिएक्शन। अब देख इसमें जनरली रिएक्शन आता है कि नॉर्मली आर 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 होता है ना, और ए आरआई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। आरआई ग्रुप भी हो सकता है, आर ग्रुप भी हो सकता है, अटैच टू द कीटोन ग्रुप। नॉर्मली एक्चुअली ये तो ओ ए जी है, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मली हमें देखा है ना इधर ओ ए जी है ना, ये तो रिएक्टेंट है, ठीक है बस। अभी इसमें इसमें ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम इसको x मतलब Br2 और x मान लेंगे, x2 x कैन बी अ ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अभी देख अभी x है, अटैक करेगा इसके ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो R हमको मिल जाएगा ओ बॉन्ड, ओहो गलती हो गया, नहीं देखो एक्चुअली ये ऐसे लगता है, लेकिन अटैक तो ये इसके ऊपर करेगा, उसके बाद ए वाला पार्ट इसमें कर लेता है, ठीक है बस। अब देख आर देता है ओ एक्स और इसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ए जी एक्स मिल गया हमको। अभी
रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ है भाई? देख इसमें आयोन्स है, आयन तो दे रहा है उसको, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो दे रहा है, बॉन्ड बना रहा है, लेकिन आयोन्स कहाँ पे है? हब आएगा आयोन्स। देख अभी हब आएगा रेडिकल, रेडिकल है, रेडिकल स्प्लिटिंग हो रहा है, आ रहा है डबल बॉन्ड ओ, रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, प्लस इसमें x माइनस आ गया। ठीक है, अब रेडिकल एक फॉर्म हो गया तो ऐसे नहीं बैठता है रेडिकल, बैंड बॉन्ड बनाने के लिए सोचता है इसके साथ, किसके साथ? इसके साथ, और ये तो रेडिकल बाहर आ जाएगा, तो आर रेडिकल बाहर आ जाएगा, उसके बाद हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, प्लस ये रिएक्शन दोबारा हमारे पास एक एलोजन था ना, ए वाला, हाँ इसके साथ बॉन्ड बना के आर एक्स, दोनों दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों रेडिकल्स हैं, ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के बॉन्ड बना लिया, बस हमारा आप आंसर है ए है डायरेक्टली, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। देख डायरेक्टली हम मैं दिखाता हूं, इसमें कुछ नहीं है, बस ए वाला पार्ट टूट के ये बी आर का ओ सॉरी बी आर ये वाला एलोजन इसमें और इसमें हो गया, ए दोनों बॉन्ड कर लेता है, और इसमें है क्या, और इसमें एक है ए जी प्लस बी आर, ए जी बी आर बॉन्ड कर लेता है और ये वाला बॉन्ड कर लेता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बस इसलिए फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ चलता है। ठीक है, बस हो गया हमारा 45th क्वेश्चन। तो हम चलेंगे अभी 46th क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्या? कंसिडर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस एन इलेक्ट्रॉन। हम हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एक कंपाउंड है, उसके उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, मतलब अभी ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट मतलब ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, ऑक्सीडाइज्ड आयन है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड आयन है, उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म हो गया ना, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, मतलब कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसका मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसके बाद वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इफ ion forms a complex with the oxidized form, then the following happens, क्या होता है भाई? अभी देख, अभी if an ion forms a complex with the oxidized form, अभी reduced form है हमारे पास, ठीक है, reduced form है, ये हम ए ऑक्सीडाइज्ड के साथ बॉन्ड करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? पहले बात है कि रेड्यूस्ड फॉर्म हो चुका है, रेड्यूस्ड फॉर्म मतलब कि क्या होता है भाई? रेड्यूस्ड मतलब कि रेड्यूस्ड फॉर्म मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसी और को रेड्यूस करके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट मींस it reduces the which is reduce the other element, okay, it reduces the other element and consider itself get oxidized, it reduced the other, so it is called a reducing agent. So now we got the same here, we got a reduced form, it means that it reduces the other part and it get oxidized. So for reducing agent, we know that it has a reduction potential, lower reduction potential, so reduced form will be having a lower reduction potential. Okay, so reduced form will having a lower reduction potential. Fine. Okay, now see what are they asking? So what happens if we treat with the oxidized form? Then the following happens, the reduction potential of the system is decreased. होता है क्या?
हाँ भाई, वही तो होता है ना, और क्या होता है नॉर्मली, हमको ये पता है ना क्या होता है, रिड्यूस्ड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम गेट अ लोअर्ड, रिडक्स पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज नहीं, सॉरी इंक्रीज नहीं होते, सॉरी इंक्रीज नहीं होते, है ना, मैंने वही तो बोल रहा है ना मैं, ये तो डिक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नेगेटिव में होता है ना। देख अभी नॉर्मली एग्जांपल ले लेंगे लिथियम, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है भाई, -3 पॉइंट समथिंग है ना, इसका मतलब कि reduction potential will be less for the reducing agents. It means that reduced form is having a less reduction potential. So reduction potential has been lowered because before it was in oxidized form, then the reduction potential was higher. When one electron is transferred to that oxidized form, it converted to reduced form. So reduced form will be having a less reduction potential, right? Yeah. So fine, we got the less reduction potential. चलिए हम चलेंगे 47th क्वेश्चन पे ऊपर। क्या पूछ रहा है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है इसका, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ np6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, np6 का एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे, इज इन ऑटोमिक यूनिट में पूछ रहा है, ऑटोमिक यूनिट हमको फॉर्मूला पता है, नॉर्मली फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, नॉर्मली हमको फॉर्मूला लिख लेंगे हम, फॉर्मूला इसमें ऑटोमिक यूनिट के लिए फॉर्मूला टू फॉर ऑटोमिक यूनिट, इन ऑटोमिक यूनिट एंगल मोमेंटम इन momentum in atomic unit, okay, in atomic unit. So this is the formula, but we know the formula, but we don't know what is L here. L is question, yeah, that what, right? We don't know what is L here. We have to find the L itself, right? So we can find the L through how? We know that for angular momentum, we want the orbitals involved here. So they're asking for a N P6. It means that consider for a P6 means the P orbital is completely filled. Fill the P orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is like M value. This is +1, 0, and this is -1. So M is, so the moment L total is the summation of M into number of electrons. Okay, this is the M value, and summation of number of electrons is the L value. So we can go with the formula L is equal to, summation means plus addition, right? Summation means addition. We are going to add these M values and electrons together. So first M value is 1 and number of electrons was 2, and next M value plus M value is 0, number of electron is 2, plus M value is -2 and number of electron, sorry, M value is -1 and number of electron is 2. So look here, this get cancelled out, we get L is equal to 0. भाई अब मिल गया ये, हम अब मिल गया L. सो क्या कर लेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट किया तो क्या फायदा है भाई, फायदा तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है L इज इक्वल टू 0 हो गया तो पूरा होल सिस्टम पूरा 0 तो हो जाता है, बस हमको आंसर तो मिल गया इधर, कितना आसान है ना, बस L हो गया, ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा तो दिक्कत नहीं है इसमें, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही है, L वैल्यू फाइंड करना है विद गिवन P6 ऑर्बिटल का, चल दिया है, इसके हम ए वाला सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ए वाला भी मेन फॉर्मूला है, ठीक है, यूज करो, सब्स्टिट्यूट करो, हमको आंसर मिल जाएगा L इज इक्वल टू 0, ठीक है, बस एक बार देख लो। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 क्वेश्चन, ठीक है, 48 क्वेश्चन तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, दूसरा पेज पे देख लेंगे इसको,
48 क्वेश्चन, यही ना 48 क्वेश्चन। चल ठीक है, हम इसको कर लेंगे 48 क्वेश्चन को। चले 48 क्वेश्चन के ऊपर अभी पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एनांशियोमर्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। भाई ये कैसे करना है? एनांशियोमर्स क्या है? having a different, क्या है? having a super, it is not super impossible, right? इसको हमको बोलते हैं एनांशियोमर्स। मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, सो हम बोलते हैं एनांशियोमर्स। सो और हम एक तरीका देखा है ना, आर एंड एस का तरीका, कौन सा तरीका था? वो तरीका था आर का एंड एस का। देख लेंगे तो आर का एंड एस सेम नहीं होना चाहिए ना, आर एस शुड बी एस एंड एच शुड बी आर। ये होता है ना, ये एनांशियोमर्स बोल सकता है, ये तो एनांशियोमर्स है ना। तब आर को एक्स करना है एंड एक्स वाला तो आर, मतलब कि सेम नहीं आना है, डिफरेंट, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आना है, हम उसको बोलता है एनांशियोमर्स। तो फाइंड कर लेंगे इससे हम कौन सा आता है, कौन सा नहीं आ रहा है। देखो पहले इससे शुरू कर लेंगे हम, पहले इससे ब्रोमीन को फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, ब्रोमीन को फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसका एस है, और इसको देख लेंगे। ठीक है, हम इसमें देख लेंगे क्या हो रहा है। देख अभी ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, उसके बाद इसको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। कौन सा आ रहा है भाई? ए बी सेम है, ए बी एस है, लेकिन हम मैंने बोला था पहले, इफ अबो द प्लेन हाइड्रोजन हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, यस टू आर करो, है ना? ये एस आ रहा है अभी, लेकिन इसको कॉन्फिगरेशन चेंज करना है तो हम आर कंसिडर कर लेंगे। इसमें ये एक एस आ रहा है, एक आर आ रहा है। ठीक है, इसमें इसमें देखो, इसमें जल्दी जल्दी कर लेंगे हम इसको। क्या, ब्रोमीन को एक दे दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो इट इज ऑल्सो एस, फाइन। इसको देखो, इसको क्या आ रहा है? इसको एक आ रहा है ब्रोमीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या आ रहा है भाई? ये कौन सा है? आर है ना, क्लॉक आर है ना, वो राइट क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ये दोनों सेम हो गया। अभी ये दोनों सेम हो गया मतलब क्या है? एस टू एस हो गया, आर टू आर हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों ओमोमर्स है, कि ये दोनों आइडेंटिकल्स बोलेंगे हम इसको, आइडेंटिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल्स। अब चलेंगे ऑप्शन सी के ऊपर। ठीक है, सी देख लेंगे क्या क्या है। ब्रोमीन को एक दे दो, और इसको दो, इसको तीन। हमको ये बताना चाहिए, प्रियोरिटी दे रहे हैं ना, एक दो तीन, ये किससे बेस है? एटॉमिक नंबर के बेस दे रहा है। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर बेस में हम प्रियोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन, इस दोनों साइड पे कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन सेम है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके पास इसके ब्रोमीन अटैच है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रियोरिटी दे रहे हैं। थर्ड, फोर्थ, इसका तो ऐसे आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन इसका अबो द प्लेन हाइड्रोजन, तो नॉर्मल से चेंज करो, आर हो गया। इसका तो एक, दो, तीन, चार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका तो एस आ रहा है, लेकिन लेकिन क्या है भाई? लेकिन इसका तो आर होना चाहिए, क्योंकि अबो द प्लेन है। ठीक है, आर हो गया ये दोनों। ठीक है, आर हो गया। क्लॉक, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, अभी आर क्लॉकवाइज हो गया। अब देख लो, इसको देख लो। अब इसमें इसको प्रियोरिटी 1 दे दो, 2 दे दो, सॉरी गड़बड़ हो गया। हाँ, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। क्या हो रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसको एस लेबल करो, और इसको देखो, 1, 2, 3, 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। यस, अब देखो
R2S हो रहा है, इसमें भी R2S हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सेम नहीं है ना। देख इसमें S2 S हो रहा है, R2 R हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों ओमर्स है। लेकिन इसमें R2S हो रहा है, R2S हो रहा है, इसका मतलब कि दे आर डिफरेंट। हम बोला है ना था पहले से, क्या बोले थे हम, देखो इधर मिलेगी हमको। हाँ देख, R2S तो डिफरेंट हो गया तो एनांटियोमर्स बोलता है, सेम हो गया तो होमर्स बोल सकता है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या है, इसमें तो हमारे पास RS डिफरेंट है, हम कंसिडर कर लेंगे इसको एनांटियोमर्स। समझ रहे, बस अब ये होता है एनांटियोमर्स। हम अब चलेंगे 48 हो गया, हम चलेंगे 50 पे ऊपर। चल 50, सॉरी 48 हो गया, 49 के ऊपर, ठीक है। 49 मैच द फॉलोइंग, लिस्ट हुआ है, लिस्ट हो दिया है, मैच करना है। फॉस्फोरेंस है, फॉस्फोरेंस के साथ मैच करना है, ठीक है। फॉस्फोरेंस क्या है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, जॉबलोन्स की डायग्राम क्या है, फ्लोरोसेंस है। ए चार दिया है, इसको मैचिंग करना है। systematic representation, a schematic representation of the various types of a radiative and a non-radiative and non-radiative transitions that occur in molecules. Spontaneous emission of a radiation arising from transition between the energy states of a same multiplicity. Non-radiative transitions between energy states of a different multiplicity. Spontaneous emission of a radiation arising from transitions between energy states of a different multiplicities. Fine. इतना इतना थियरी दिया है, लेकिन हमको पहले इसके लिए हमको एक चाहिए, वो बोलते हैं हम जैबलोन्स की डायग्राम। जैबलोन्स की डायग्राम चाहिए हमको, ठीक है, ए वाला डायग्राम चाहिए। हम डायग्राम के साथ ही हम इसको समझ लेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हम पहले जैबलोन्स की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम इसको कर लेंगे S0 मतलब कि ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हम इस कंसिडर कर लेंगे ग्राउंड स्टेट। उसके बाद इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट और इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे हम। उसके बाद इधर में आता है कि ट्रिपलेट स्टेट्स, ट्रिपलेट स्टेट और T2 स्टेट्स। फाइन। अभी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है। कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाता है, अब्जॉर्प्शन टेक्स अब्जॉर्प्शन, लाइक अब्जॉर्प्शन लेके S1 पे भी ऊपर जा सकता है और अभी S2 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। हम ब्लैक लाइन को ले लेंगे, हम इस साइड में लिख लेता हूं, ठीक है, ब्लैक लाइन, ठीक है। इसको क्या होता है, नेक्स्ट हम चलेंगे after absorption it should emit that light, right? It should emit that. So when something is absorbed, it should emit that, because after absorbing it will not be in a simple stable state, okay, it will be in excited state. To regain its stable state, it just eliminate that which thinks it has been observed. It can be of a, it can eliminate heat, or it can eliminate as energy form, or it can be eliminated as a light, or it can be eliminated as a radiation form. Okay, so first process after absorption, it can be absorbed from year to year also, okay, till S3 also it can get absorbed, depends on the energy of the electromagnetic radiation, okay, depends on the energy of electromagnetic radiation, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मली S3 to नीचे आ सकता है, ठीक है, S3 to नीचे आ सकता है और S2 to भी नीचे आ सकता है, ठीक है। हम इस नीचे आ रहा ना, इसको बोलते हैं हम सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, मतलब को सिस्टम को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि इंटरनल क्रॉसिंग बोल सकते हैं हम, आईसी, ठीक है। आईसी मतलब कि इंटरनल क्रॉसिंग,
ठीक है, इसका मतलब कि इंटरनल क्रॉसिंग। ठीक है, हमको इंटरनल क्रॉसिंग हो चुका है। इंटरनल क्रॉसिंग होने के बाद क्या हो सकते हैं भाई, और एक चांसेस है इंटर सिस्टम, मतलब ए वाला एक सिस्टम है, हमको S1 रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम इसको सिंगलेट बोलते हैं। ठीक है, सिंगलेट बोलते हैं। और T1 रिप्रेजेंट करते हैं ना, टी मतलब एन, इट कैन बी Tn और T1 और T2, बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। एक स्टेट होता है ट्रिपलेट स्टेट, मतलब हम मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हैं, ये दोनों मतलब सिंगलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, बस अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर दिया, मतलब ऑब्जर्व होने के बाद ये तो रिटर्न रिटर्न देना पड़ता है ना, उसके बाद रिटर्न देने के टाइम सिस्टम के साथ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिस्टम के साथ क्रॉसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग हो रहा है, इसको बोलता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। इसका मतलब कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होने के बाद इंटर इंटर कन्वर्शन भी हो गया, इंटर सिस्टम कन्वर्शन भी हो गया। ठीक है, इंटर कन्वर्शन, सॉरी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया, और इंटर क्रॉसिंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो गया। अभी ये दोनों मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसमें रह चुका है, अभी वो दोनों भी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुछ एमिट करता है। वो क्या एमिट करता है हम देख लेंगे, क्या एमिट करता है। ठीक है, हम देख लेंगे। इंटर इंटर क्रॉसिंग हो चुका है ना, इंटर क्रॉसिंग ए एमिट करता है फ्लोरोसेंस। क्या करता है, फ्लोरोसेंस। क्या करते हैं भाई, फ्लोरोसेंस एमिट करता है, फ्लोरोसेंस एमिट करता है। और ये वाला क्या एमिट करता है, कौन सा, देख लो, ये वाला। हाँ, ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट टाइम पे एमिट करता है फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, फॉस्फोरोसेंस एमिट करता है। ठीक है, ए एमिट करता है फ्लोरोसेंस, ए एमिट करता है फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, अब चलेंगे, हम अभी को पता चल गया हमको फ्लोरोसेंस एमिट करने के टाइम इंटर क्रॉसिंग होता है, इसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी देख, फ्लोरोसेंस में मल्टीप्लिसिटी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी S1 टू S1 टू S0 आ रहा है ना। और ट्रिपलेट में क्या हो रहा है, ट्रिपलेट में T1 टू S0 आ रहा है, मतलब कि T1 टू S0, मतलब कि ट्रिप मतलब मल्टीप्लिसिटी इज चेंजिंग, मल्टीप्लिसिटी इज चेंजिंग, समझ रहे हो, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि अभी हमको पता चल जाता है क्या हो रहा है इसमें। देख, पहले वाला पहले हम देख लेंगे, फॉस्फोरेंस सेंस में क्या हो रहा है भाई, फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, उसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज होता है। अब देख लो, a schematic representation of the various type of radiative and non-radiative transitions that can occur in molecules। ये तो नहीं है, देख लो, spontaneous emission of radiation arising from transition between energy states of same multiplicity। नहीं, same multiplicity नहीं है, इधर देख, इधर different multiplicity, हाँ मिल गया अभी, different multiplicity। सो हम इसको मार्क कर लेंगे ये। चल, अब जल्दी दूसरा देख लेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अभी फ्लोरोसेंस देख लेंगे, फ्लोरोसेंस। ठीक है, फ्लोरोसेंस क्यों, मतलब कि हमको सेम एडिटिविटी मिला है ना, इसको मार्क कर लेंगे फ्लोरोसेंस से, डी, डी मार्क कर दिया। अब देख, spontaneous emission of radiation arising from transition between energy states to different multiplicities। हाँ देख, spontaneous emission energy states, ओके चल, ये नहीं है। और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, ऑप्शन 3 देखो। हाँ, मैं एक पॉइंट भूल गया आपको, ये होता है ना, इसमें ये आ जाता है ना, इसमें ये वाला पार्ट इंटर इंटर क्रॉसिंग, इसमें नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है, नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है ये पार्ट, क्योंकि इसमें
हार्मफुल, एनर्जी हार्मफुल नहीं होता है। फ्लोरोसेंस मतलब पता है ना आप लोग को क्या? फ्लोरोसेंस मतलब कि कलर, फ्लोरो मतलब कि कलर, कलर एमिशन करता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद दोबारा मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने के लिए वो कुछ एनर्जी छोड़ना होता है। लेकिन ये एनर्जी कैसे छोड़ रहा है? एनर्जी छोड़ रहा है कलर से बेस पे, मतलब कुछ कलर दिखा के एनर्जी छोड़ता है। मतलब कि नॉन रेडिएटिव है, ये तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये फॉस्फोरेसेंस है ना, ये रेडिएटिव होता है। ठीक है, ये रेडिएटिव हो जाता है कि इंटर सिस्टम इंटर क्रॉसिंग होता है, ये रेडिएटिव नहीं है। ठीक है, सॉरी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। एक बार नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी स्टेट्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। सॉरी सर, हाँ चलो। इफ ए होता है फॉस्फोरेंस, बोला मैं रेडिएटिव है, लेकिन इंटरसिस्टम क्रॉसिंग भी नहीं बोला मैं। इंटरसिस्टम क्रॉसिंग दोनों भी सेम है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ये दोनों इंटरसिस्टम क्रॉसिंग एंड इंटर क्रॉसिंग, ये दोनों नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, और ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। समटाइम्स ये फ्लोरोसेंस हो सकता है रेडिएटिव, लेकिन फॉस्फोरेसेंस एवरी टाइम इट इज एवरी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम इट इज अ रेडिएटिव। सो फाइन, हमको पता चल गया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी किसका है? इंटरसिस्टम क्रॉसिंग में डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, सो हम इसको मार्क कर लेंगे बी। ठीक है, अब बचा हुआ है सी, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रेडिएटिव। बस अब देख लो, A4 आना चाहिए। ठीक है, A4, B3, C1, D2, हाँ मिल गया, ऑप्शन है। ठीक है, हमको मिल गया, ऑप्शन है बस। ठीक है भाई, हो गया हमारा ये वाला पार्ट। 49 क्वेश्चन। अब चलेंगे हम 50 के ऊपर। क्या बोल रहा है 50 क्वेश्चन पे? बोल रहा है कि द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2। चल, हम इसको भी निकालेंगे, इतना आसान आसान तरीका से निकालेंगे O2F2 का ऑक्सीजन स्टेट। मतलब का ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे भाई हम। कैसे निकालेंगे? देख, मैं दिखाता हूं ना, इतना इजी से। O2F2, ठीक है, O2F2 तो नॉर्मल हो गया। अब देखो, हमको ऑक्सीजन स्टेट चाहिए, लेकिन हमको पता है ना फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है भाई, -1 है। ठीक है, उसका चार्ज होता है -1। हम कंसिडर कर लेंगे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी X। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर ऑक्सीजन स्टेट, और हम लिख लेंगे ऑक्सीजन स्टेट नहीं, चार्ज। ठीक है, हम चार्ज लिख लेंगे इसको, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। चार्ज, इसका भी चार्ज, चार्ज ऑफ फ्लोरीन एंड चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो हो गया। अब देखो कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, इसका चार्ज कितना है, -1 है। प्लस कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसका चार्ज कितना है, X। टोटल का कितना है, टोटल 0। बस अब देख लो, अभी आ गया, -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 बाई 2x इज इक्वल टू +2 हो गया। और उसके बाद देख लो x इज इक्वल टू 2/2, हमको मिल गया x इज इक्वल टू +1 चार्ज। ठीक है भाई, हमको मिल गया ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। बस क्या है, +1। सीख लिया तरीका कैसे निकलना है, बस हो गया। अब चलेंगे हम 51 के ऊपर। पहले हम दोबारा, आप लोग एक बार देख लो कैसे निकालना है। ठीक है, बस अब हम चलेंगे 51 के ऊपर। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चले, हम इसको नॉर्मली हम अलीन पे किया ना, अलीन्स, ऐसे ही निकालेंगे इसको भी। अलीन्स नॉर्मली किसी जैसे निकालना है। ठीक है, इसको भी, लेकिन उसके पहले
हमको ये दोनों पता है, ये तो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, ये दोनों नॉमेनक्लेचर है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि एक एटम है ना, इधर एक एटम है और इधर भी एक एटम है, ये दोनों ऑपोजिट होके, मतलब कि इसका सेंटर, इसका लाइन होना चाहिए ना, ये सेंटर के पास थ्रू होके सेम एटम ही टच करना है, ठीक है, सेम एटम ही टच करना है। इसमें हम ले लेंगे SO3H, इसमें भी SO3H ले लेंगे। अभी SO3H ए सेम है, ए भी सेम है, लेकिन ये दोनों सेंटर के पास ही थ्रू होना चाहिए। हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्शन सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? इन्वर्शन सेंटर, ठीक है। हमको डिनोट कर लेंगे इसको आई से, हम इसको डिनोट कर सकता है आई से, ठीक है। आई कर सकता है, नहीं इसको करता है आई से, ठीक है। अब देख, प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिनोट करता है सिग्मा से। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है? मतलब कि हम देख लेंगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका तो देख प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों साइड में हाइड्रोजन ऐसे ही दिख रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा है हमको कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि दोनों साइड में कट करने के बाद, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन जैसे कट कर सकते हैं और बीच में भी कट कर सकते हैं, कट करके हमको सेम मॉलिक्यूल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। कट करने के बाद हमको सेम आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम ही लग रहा है ना। हाँ, इस तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। चल ठीक है भाई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हमको मिल गया। लेकिन इसमें देखना है हमको, अभी इसमें देखना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है क्या, देख लो होता है क्या, देख अब ऐसे कट करके देख लो, हो रहा है क्या? नहीं, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, इसमें O आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अपोजिट अपोजिट आ रहा है, गलत है। ऐसे ट्राई करो एक बार, ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो भाई, सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं, देख हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है, क्यों? ऐसे लग रहा है कि हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है भाई, क्यों? पता है आपको क्यों? क्योंकि ये प्लेन सेम प्लेन पे नहीं है, ये दोनों अबव, ये दोनों ये अबव है, ये बिलो, इसका मतलब कि ये ऊपर, मतलब एक प्लेन में ये अबव है और ये तो बिलो है, लेकिन इधर है CO2H है, इधर है हाइड्रोजन है, कहाँ पे मिलता है भाई? ये दोनों का कैसे हो रहा है? नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। हम देख लेंगे अभी R&S नॉमेनक्लेचर। चल ठीक है, R&S नॉमेनक्लेचर भी देख लेंगे कैसे करता है, देख अभी बोर्ड लाइन को ड्रॉ करो पहले, ठीक है, और एक अभी इस साइड पे देख लो, हाई कांटेक्ट, इस साइड पे देख लो, हम नॉर्मली में बोला है ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल है, ये तो मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, मैं इस साइड से इसको देख रहा हूं, इस साइड से इसको देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं मैं इसको, मतलब कि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आना चाहिए, मतलब इसका लेफ्ट साइड आता है लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल, इसका राइट साइड आता है राइट साइड वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो अब है ये कौन सा साइड पे आ रहा है, देख कौन सा साइड पे आ रहा है, देखो अब देखो, आपको पता चल जाता है आपको, देख अब इसमें मैं हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में क्या है, ये तो हाइड्रोजन है, और ये कौन सा है, ए वाला पार्ट, ये तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, ठीक है। हम इसको लेफ्ट राइट साइड मान लेंगे, इस ब्लू वाला को हम मान लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा, हम इसको लेफ्ट साइड मान लेंगे, इसको राइट साइड मान लेंगे, ठीक है। बस अभी राइट साइड को क्या लिखो, COH, इसको लिखो हाइड्रोजन, और ए तो अप है और ए तो डाउन है, ठीक है, इसमें लिखो COH, इसमें लिखो हाइड्रोजन। अब ना लेबलिंग कर दो, लेबलिंग को प्रायोरिटी बोल्ड लाइन होना चाहिए, बोल्ड लाइन प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड, ए थर्ड है और ए फोर्थ है, सो 1 2 3, क्या हो रहा है भाई? क्लॉकवाइज हो रहा है ना, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज हो रहा है, आर आर हो रहा है ना, क्लॉकवाइज आर,
ठीक है, हम ए भी देखना है। एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन अबो हो जाएगा, इसमें रोल नहीं, ओ रूल नहीं आता है इसमें नॉर्मली ओ रूल नहीं आता है। ठीक है, बस नॉर्मली आपको पता चल जाए ना, आंसर है आर। ठीक है, हम चले ये वाला क्वेश्चन पे ऊपर। ठीक है, हाँ भाई देख ले, हम चलेंगे 52 के क्वेश्चन पे ऊपर। इन लो क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन द एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लैटिन, आपको पता है सिस्प्लैटिन कैसे दिखता है? हाँ, सिस्प्लैटिन कैसे दिखता है भाई? ये होता है क्या सिस्प्लैटिन, है ना सिस्प्लैटिन? ठीक है, सिस्प्लैटिन है, होता है नॉर्मली मोर इंपॉर्टेंट है सिस्प्लैटिन, तो एंटी कैंसर ड्रग जैसे वर्क करता है सिस्प्लैटिन। Okay, to give a diaqua complex, and this binds to DNA via adjacent guanine. So the coordination atom of a guanine to platinum. हाँ, अब इसमें कौन सा नाइट्रोजन एटम, ग्वानाइन का नाइट्रोजन एटम प्लैटिनम के साथ बाइंड करता है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, कैसे बाइंड करता है भाई देख, पहले हमको इसको नंबर दे देंगे पहले। ठीक है, नंबर दे देंगे उसको पहले, इससे शुरू करना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये लोन पैर इधर बचा है, और इधर भी लोन पैर बचा है, इधर भी लोन पैर है, लेकिन ए वाला लोन पैर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है, ए वाला लोन पैर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, देख अभी हमारे पास चार ऑप्शन है, ए वाला नाइट्रोजन, ए वाला नाइट्रोजन एंड ए वाला नाइट्रोजन एंड ए वाला, लेकिन हमारा पे ए वाला नाइट्रोजन के ऊपर ये बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग टू प्लैटिन, पीटी। ठीक है, N9, समझ रहे हो? मतलब कि ए वाला के ऊपर बॉन्डिंग होता है, क्यों भाई? क्योंकि इधर रिसेप्टार जैसे, मतलब एक्सेप्टार जैसे, एक्सेप्टार एंड रिसेप्टर। ठीक है, प्लैटिन ये तो नॉर्मली रिसेप्टार जैसे एक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन का ग्रुप है ना ये वाला ग्रुप, ये रिसेप्टार जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्मली मोर बेसिक भी हो चुका है, मोर बेस है ना? इसका फ्री हेडेड है, तो ये नॉर्मली डोनेट करता, मतलब रिसेप्टार जैसे एक्ट, सॉरी एक्सेप्टर जैसे एक्ट, रिसेप्टर जैसे एक्ट करके प्लैटिनम को दे रहा है। ठीक है, बस हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर है N9। ठीक है, N9। चल हम चलेंगे 53rd क्वेश्चन के ऊपर। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्या क्या पूछ रहा है इधर? Which of the following species is aromatic in nature? देखो, which of the following species is aromatic in nature? नॉर्मली एरोमेटिक के लिए हमें 3 कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन शॉर्ट में मैं लिख लेता हूं इसमें। पहला कंडीशन क्या है भाई? एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक नेचर होने के लिए पहला होता है कि शुड बी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी कॉन्जुगेटेड और शोस अ रेजोनेंस दिखाना चाहिए। सेकंड पार्ट आता है कि प्लेनार होना चाहिए, और थर्ड शुड फॉलो अकल्स रूल। अकल्स रूल क्या है भाई? 4n+2 रूल। ये तीनों कंडीशन ओबे कर दिया ना, ए वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ए वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। हम चलेंगे, देख लेंगे इसमें एरोमेटिक कौन सा है। पहले देखो, सभी प्लेनर है क्या? हाँ, सभी प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्लेनर के लिए एक हमको बात पता होना चाहिए कि प्लेनर होने के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, एंड हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए
हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। फाइन, ठीक है। देखो अभी इसका ये तो प्लेनर है, ठीक है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, सभी के पास कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसमें देखो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है इसमें, ठीक है, लेकिन ए पास नहीं होते क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इधर, ठीक है, दिख रहा है आपको? दिखा और अभी दिखाता हूं मैं। ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, ठीक है, इसके वजह से इतना इधर टू इधर, बस ए पार्ट होता है ना, ए पार्ट होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट पार्ट। अब चले इसमें, ठीक है, एक मतलब sp3 कार्बन हो गया, sp3 कार्बन आ गया, इसका तो एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तो नहीं है, sp3 कार्बन क्यों आना चाहिए भाई? मैंने बोला ना प्लेनर के लिए नॉर्मली sp2 होना चाहिए, लेकिन इधर में क्या है, इधर में sp3 आ चुका है, तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता है। और हम चलेंगे सेकंड पे। सेकंड में देखो चार्ज भी है, प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, देखो कॉन्जुगेशन है। अकेल्स रूल होबे कर रहा है क्या? देख लो अकेल्स रूल के लिए क्या होना चाहिए, देखो अकेल्स रूल के लिए 4n+2 होबे होना चाहिए। n इज इक्वल टू हम दे देंगे 1, तो अकेल्स रूल पे 4n+2, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 एनी इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम 0। सो हम पहले 0 दे देंगे, क्या होता है भाई, 2 आना चाहिए, दे दो, 6 आना चाहिए, 2 दे दो, 10 आना चाहिए, ठीक है। इस दोनों क्या है, 260 क्या है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाई, वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू कितना है भाई, वन डबल बॉन्ड, क्या हो रहा है, चल देख, वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 pi electron and one charge is equal to 2 pi electron, ठीक है। अब इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके पास है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन किल रूल फॉलो होता है 2 6 10 के लिए, बस 4 हो जाता है ना, ये तो गलत है, ठीक है, ये 4n रूल होता है, ठीक है, 4n रूल है, लेकिन हम 4n रूल के बात नहीं कर रहे हैं, हम एरोमेटिसिटी के लिए देख रहे हैं। इसमें तो ए भी नहीं है, हम इसमें चलेंगे, इसमें भी कितना बॉन्ड है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गलत है भाई, इसमें चले, हाँ इसमें हो रहा है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बस हमारा आंसर तो मिल गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, बस हमारा आंसर मिल गया, देख लो ये हमारा आंसर, ठीक है। एक्चुअली 4n रूल होता है ना, ये एंटी एरोमेटिक के लिए होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n रूल होता है, ठीक है। बस हम चले अभी 54 क्वेश्चन के ऊपर, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है, हम अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। चलो एक मिनट, ओ बाय, हाँ देखो भाई को मिल गया, 54 क्वेश्चन कर रहे थे ना, 54 क्वेश्चन, उसको फिर कर लेंगे 54 क्वेश्चन को, ठीक है। देख, अरेंज द अरेंज द डिक्रीजिंग, अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। देखो एक बात पहले देख लो,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिए, मतलब एसिडिटी के लिए हमको एसिडिटी directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating। ठीक है, अब देखो हार है और OH ग्रुप है, ये क्या है? आर ग्रुप क्या होता है भाई? आर ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि एज द साइज गोस ऑन इंक्रीजिंग, एज साइज गोस ऑन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैपेसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, देख इसका तो कैपेसिटी इतना था, इसके बाद दोबारा इसका तो डबल हो गया और इसका तो ट्रिपल हो चुका है, इसके इसके तो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, रिंग साइज बढ़ रहा है, इसमें रिंग साइज बढ़ के क्या हो रहा है? रिंग साइज बढ़ के इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि इसका एसिडिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा नॉर्मली हम ऑर्डर लिख लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेना, स्टार्टिंग ज्यादा से लिखना है। Acidity is more for this, next this, and next for this, and next for a fourth. Decreasing order of acidity. Acidity कैसे डिक्रीज होता है भाई? ऐसे है ना, डिक्रीज हो जाए। हाँ देख लो कहाँ पे है। हाँ ऑप्शन 3 पे है, बस इतना ही है। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट है ना, ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रख लो इसको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस हम चलेंगे अभी इसके, कौन सा क्वेश्चन था? 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने, चलेंगे 55 क्वेश्चन के ऊपर। 55 क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, हम इसको भी इधर देख लेंगे 55 को। हाँ ये 55 क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो एक बार, देख लो 55 क्वेश्चन ना है। 55 क्वेश्चन, द प्रोवाइड द फॉलोइंग रिएक्शन MCVP, ठीक है वही है, वही 50 क्वेश्चन है। ठीक है, देख हाँ यही 15 क्वेश्चन है, समझ रहा? देख अभी 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली रिएक्शन शुरू कर लेता हूं। ठीक है, ये क्या है भाई? लिक्विड विथ लिथियम विथ लिक्विड अमोनिया, ये है बिर्च रिडक्शन। भाई ये क्या है? बिर्च रिडक्शन, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी आसान भी है। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म लिख लेता हूं, मैं इधर से शुरू करता हूं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म शुरू कर लेता हूं मैं। ओ एम ई है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। अब क्या हो जाएगा भाई? अब देखो एक लिक्विड है ना, लिक्विड अमोनिया। हाँ, नॉर्मली हमको ये बात पता होना चाहिए कि लिथियम क्या करेगा भाई? लिथियम क्या करेगा? लिथियम नॉर्मली ऐसे डोनेट करेगा। ठीक है, लिक्विड नॉर्मली ऐसे डोनेट करेगा, इसके डोनेट करने के बाद मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लिक्विड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते करके उसको, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा सकते हैं हम। ठीक है, हम इसको डोनेट करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है और इसको मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, इसको नेगेटिव चार्ज बन जाता है,
OMe बन चुका है? तो नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज बन चुके, इसमें रेडिकल फॉर्म हो गया। सॉरी, ठीक है, रेडिकल फॉर्म हो चुका है। उसके बाद दोबारा NH3 है, वो नॉर्मली ये वाला रिएक्शन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो गया इस पे? Me था, OMe, ठीक है। अब ये तो ब्रिज रिडक्शन, नॉर्मली ब्रिज रिडक्शन है, मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, हम ये मेटल है ना, हाँ, मेटल विथ लिक्विड अमोनिया बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। अभी डबल बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड अपोजिट अपोजिट आ गया है, ठीक है, समझ रहे हो? अपोजिट अपोजिट आ गया। अभी देख, अभी इसके बाद हमारे पास MCPP है, MCPBA पर क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, ठीक है। ये क्या करेगा? ये तो ऑक्सीडेशन, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा। कौन सा अल्केन ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई? ए वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। OMe हो गया, Me है, डबल बॉन्ड है, ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज है, ठीक है। बस देखो, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, समझ रहे? ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। अब कहाँ पे है भाई? हाँ, इधर है ना, मिल गया, पहला वाला ऑप्शन ही है, ठीक है। ये वाला हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि देख, एक कंडीशन है कि ब्रिज रिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारा ब्रिज रिडक्शन टू MCP, ये ब्रिज रिडक्शन का पार्ट है, ए पहला ए पार्ट है, उसके बाद एक दूसरा बी पार्ट, ठीक है। फर्स्ट ए सेकेंड है, ब्रिज रिडक्शन के पास MCP है, ऑक्सीडेशन हो गया, बस हो गया काम। चले हम 55th क्वेश्चन हो गया। चल ठीक है, हम 55th से हम शुरू कर लेंगे अगला सेक्शन में। अभी फिलहाल के लिए अभी इतना काफी है। हम 56 से हम नेक्स्ट सेक्शन में पार्ट 4 पे शुरू कर लेंगे। अब हमने कितना क्वेश्चन तक किया? हमने 55 तक किया है। पहला पार्ट था पार्ट वन पे हम 90 क्वेश्चन तक किया था। पार्ट 2 सेक्शन पे हमने 40 तक किया था। अभी पार्ट 3 में 55 किया था। हमें नॉर्मली आंसर बोल के नहीं जा रहा है, एक्चुअली वी आर just giving you a deep explanation. Okay, we are giving a deep explanation and a mechanism what's going on in every reaction and why that reaction is not possible. Okay, thank you students, and watch it and have a nice day. Thank you one and all.